Again, what is the important from jurisprudence that will be discussed over here. And I am going to take this jurisprudence in a hybrid way. जितना ज़्यादा important part होता है इसका, जैसे आपका particular act, उसका objective, उसका year of passing, उसके बाद में particular act, उसके अंदर कितने penalties है, वो एक important point है. Particular act, ये particular act के अंदर हर एक definition कितना है. There are different kind of definitions under every each and every act. For example, if you take a drug and cosmetic, there are different definitions like adulterated drug, misbranded drug, spurious cosmetic. Like NDPS Act, under Narcotic Drug and Psychotropic Act, you have various definitions like manufactured drug, what is a manufactured drug, then ganja, what is opium, etc. etc. So there are certain definitions under each and every act. So we are going to see one by one. We will discuss one by one. Then different act and their penalties. In that, if there are certain other important points, those will be also be discussed. So first, we'll discuss some historical background and historical milestone that can be asked in the exam. कुछ historical points होते हैं जो आपको याद रखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आ भी सकते हैं. ठीक है, हम historical milestone, already they have asked question from few milestone, so you have to remember it. So we'll see first part one by one. Actually this subject is a little bit law oriented. ये सब subject जो है jurisprudence, ये law के जैसा होता है और उसमें मतलब contravention, उसमें conviction, imprisonment, ऐसे कुछ terms आएंगे. At the time I will explain you. So remember important milestones in the pharmacy profession. First hospital in the India was started in the Madras. So first hospital was started in the 1664. Red Fort, St. George, Madras. Then first chemist shop, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. First chemist shop was started in the Kolkata. 20 मार्क्स के लिए आपको jurisprudence का क्वेश्चन आएगा. So you can expect at least 4 questions from jurisprudence, and those are from different important points. We'll discuss one by one. So first important milestones in the pharmacy profession. First hospital was started in the 1664 at a Red St. George, Madras. तो मद्रास में पहला हॉस्पिटल इंडिया में खुला था 1664 में, याद रखो. देन सेकंड फर्स्ट केमिस्ट शॉप, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. So first chemist shop was started in the 1811. 1811 in the Kolkata. It was started by this. It was started by this Mr. Bathgate. Yeah, I think question आया था GPAT 2019 में. So first chemist shop was started by Mr. Bathgate. Okay, it is a Dutch chemist. ये Dutch city है, Dutch कंट्री का केमिस्ट था मिस्टर बाथगेट. इसने फर्स्ट केमिस्ट शॉप अपना इंडिया में डाला था. There are a lot of milestone, but I have listed only those which are very important. ये कहाँ से पढ़ना है आपको मैं बाद में बोल दूंगा. So first drug enquiry committee, DEC, drug enquiry committee. First drug enquiry committee was established in the 1930. So 11th of August 1930, this drug enquiry committee was constituted. Now what was the role of this drug enquiry committee? To inquire the matters related to drugs. For example, जैसे adverse effect होता है आपका. So before independence there was a British rule before independence. So when British left, so they have given some drugs, and after lefting this British, or after ending the British rule, so British was in Britain and in India, so there was new policies. It was independence. So at that time in India, nobody was aware about the adverse effect of certain drugs. So when British was there in their country, like UK, British was when there in their country, home country Britain. So they have released some press notes in their gazette, in British gazette, okay? And they have given some adverse effect of drugs. And then in India there was alarm, and in India also they have started thinking on the adverse effect of drug. For that matter, there was a constitution of one committee known as a drug inquiry committee, and it was the chairman of this committee, or this committee was headed by this R.N. Chopra, and this is also known as a Chopra committee. This is also known as Chopra committee. Remember, drug inquiry committee is also known as a Chopra committee. इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो होता है, जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम होता है, आपका DI का एग्जाम होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ओके, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज first constituted on 11th August 1930, and it was headed by R.N. Chopra, and it is also known as Chopra committee. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Then DTAB, first DTAB,
Drug Technical Advisory Board. So it is a constitution of board was constituted to give advice on the technical matters of drug. तो ये टेक्निकल मैटर जो है ड्रग का मतलब जो भी तो DTAB मतलब क्या है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड दिस बोर्ड फर्स्ट टाइम वाज constituted to give advice on the technical matters of drug. First time it was constituted in the remember 1941. 1941 में इसका फर्स्ट टाइम गठन हुआ था इसका DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड to give a advice on a technical matter related to drugs याद रखो then first CDL central drug laboratory so first time central drug laboratory it was a constituted it was a first CDL was there in 1937 1937 में पहला CDL आया था इसका नाम CDL नहीं था okay so in 1937 biological standardization laboratory that is known as a BSL biological standardization laboratory was established at Calcutta so in 1937 biological standard laboratory was established at Calcutta and later on it was renamed as a central drug laboratory in 1940 कभी-कभी आपको ये मालूम होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन 1940 but before that it was known as a biological standardization laboratory then first PCI first pharmacy council of India was constituted in so this was again a question in various exam GPAT में भी आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में first pharmacy council of India was constituted in the year of इसका क्वेश्चन आ चुका है बहुत 9th of November 1949 okay 9/11/1900 okay 9/11/1940 first pharmacy council of India then first president of pharmacy council of India first president कौन थे तो याद रखो 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसके बाद में ही प्रेसिडेंट उनका बनाया था तो डॉक्टर के सी के ई राजा was the first nominated president of pharmacy council of India why government ने उनको nominate किया था now next is education regulation ER means education regulation okay so first education regulation was passed in the 11th July 19 first education regulation was approved by this Ministry of Health and Family Welfare Government of India first B Farm college so first B Farm college approved by Pharmacy Council of India इसमें दो है milestone actually first B Farm first pharmaceutical course okay, first graduate pharmaceutical course was started at the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है आपका वाराणसी में वहाँ पे फर्स्ट कोर्स स्टार्ट किया था 2 साल का था इट वाज अ 2-year डिग्री कोर्स स्टार्टेड इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी okay before this first pharmacy college approved by PCI was started in the 1954 at the BITS Pilani so Birla Institute of Technology Pilani BITS Pilani so it was a first pharmacy college that is a first B Farm college approved by PCI now first D Farm college कहाँ पे चालू होता है इसका भी क्वेश्चन आ चुका है first D Farm college was started in the 1955 at Government Medical College Amritsar पंजाब में so first diploma pharmacy college was started in the 1955 Government Medical College Amritsar it was the first D Farm course approved by Pharmacy Council of India then AICT का गठन कब हुआ था All India Council for okay All India Technical Council All India Council for Technical Education AICTE it was first time AICTE was constituted in the 23rd December 1987 All India Council for Technical Education constituted under the AICTE Act and covers the pharmacy education okay and covering the pharmacy education enacted so AICTE के अंदर ही pharmacy education तो AICTE याद रखो को फर्स्ट हॉस्पिटल का आता फर्स्ट हॉस्पिटल 1664 is okay Red Fort St George Madras first chemist shop by Bathgate इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है DTAB कब आया था 1941 में देन CDL कब आया था फर्स्ट 1937 so before 1940 it was known as a BSL or biological standardization laboratory it was established at कलकत्ता में वो चालू हुआ था उसके बाद में उसका रिनेम हुआ है 1940 में अब वो जाना जाता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इसके बहुत सारे टाइप होते हैं वो अपन PCI का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था फर्स्ट PCI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 1949 याद रखो
9/11/1914 इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर के सी के ई राय, nominated by government. Okay, first president of PCI, first education regulation 11th April 1953, then first बी फार्म कॉलेज बिट्स पिलानी 1954। इसके पहले भी एक कोर्स आया था बी फार्म, मतलब 2 years डिग्री कोर्स इन द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, and that was the course Banaras Hindu University, Varanasi, way before this. In 1954, first BPharm college which was approved by PCI. It was the first BPharm college, that is Birla Institute of Technology, Bitsville. Then first BPharm college was started at Amritsar in 1955. Government Medical College Amritsar. It was also approved by PCI. Then AICT के बारे में याद रखो. It was first AICT was established in 1987. Okay. So these are some milestones. इसके 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 व्यतिरिक्त भी, इसके इन एडिशन टू दिस अगर आपको पढ़ना है बहुत सारे माइलस्टोन, तो यू कैन सी कोकाटे के जो कोकाटे का बुक आता है फॉरेंसिक फार्मेसी बाय सीके कोकाटे, उसमें कुछ इनिशियल पेजेस में ही उनका इसका इंफॉर्मेशन दिया है, बट आई डोंट थिंक अदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बजाय कुछ नहीं था। नेक्स्ट विल सी इंडियन फार्माकोपिया। So different editions of Indian Pharmacopoeia. So what is Indian Pharmacopoeia? So it is an official book for medicine, the official book for drugs. So here we have all kind of standards right from raw material, processing, finished product, their standard and all that. Okay. So all the monographs of regarding the all information about the drug, that is present in the pharmacopoeia. It is the official book for drugs. Okay. Remember. So there are different editions of इंडियन फार्माकोपिया। वैसे जैसे इंडिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया होता है, सो लाइकवाइज योर यूएस एज यूएस फार्माकोपिया, योर ब्रिटिश एज बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन यूरोपियन फार्माकोपिया। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फार्माकोपिया, लाइक आईपी इज इंडियन फार्माकोपिया, बीपी इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, ईपी इज यूरोपियन फार्माकोपिया, यूएसपी इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देन उसका इसका भी होता है, बहुत सारे फार्माकोपियाज होते हैं हर एक रेस्पिरेटरी कंट्रीज के लिए। आपके इंडिया का ही इंपॉर्टेंट है अपना, क्योंकि इंडिया का ही पूछेंगे, ब्रिटिश का नहीं पूछेंगे। रिमेंबर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1955। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस थोड़ा बहुत है तो मैं बताऊँ। सो रिमेंबर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द 1955, एंड आफ्टर द 10 years of that, 1955 plus 10, 1966. So after 10 years of that, second pharmacopoeia, Indian pharmacopoeia. फर्स्ट 1955 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं 2-3 बार। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द 1954, yes 1955। सो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955, सेकंड इंडियन फार्माकोपिया 1966, आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है 10 ईयर का गैप इसमें, आप यहाँ तो 10 इयर्स का गैप। सो 1955, आफ्टर दैट 1966 सेकंड, थर्ड एडिशन, ओके, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द 1985। यू कैन सी एग्जैक्टली 19 ईयर्स डिफरेंस, 19 या 20 भी लिख सकते हो, ये 19 ईयर का डिफरेंस है, 19 ईयर डिफरेंस। देन फोर्थ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द 1996। इट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम December 1996, 1st December 96। So first edition 1955, second edition 66, third edition 85, fourth edition 96, okay। Now fifth edition of Indian Pharmacopoeia, it was published in the 2007। फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 2007 में। सिक्स एडिशन 2010, एडिशन 2010 इंडियन फार्माकोपिया सिक्स एडिशन, it was published by Indian Pharmaceutical Council, Ghaziabad, effective from 1st September 2010। Then seventh edition of Pharmacopoeia, Indian Pharmacopoeia, was published by IPC in 2014 on the behalf of Ministry of Health and Family Welfare। So seventh edition 2014, eighth edition in 2018, and presently ninth edition of Indian Pharmacopoeia is there, which is published in the 2022। याद रखो ninth edition, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 55, सेकंड 66, थर्ड 85, फोर्थ 96, सेवन फिफ्थ 2007, सिक्स 2010, सेवंथ 2014, एट 2018 एंड नाइन्थ 2022, ठीक है। इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वेरियस एग्जाम में आते हैं, लाइक नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो पर्टिकुलरली ये जो टाइप के पोस्ट होते हैं, जैसे
फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया या फिर आपका ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो इस टाइप के पोस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं और जीपैट में भी आता है। तो रिमेंबर द डिफरेंट एडिशंस ऑफ फार्माकोपिया, डिफरेंट एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इन एडिशन टू दैट आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो आप बाकी के भी पढ़ सकते हो, जैसे डिफरेंट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माको, और इंडियन फार्माकोपिया कहाँ से लिया है, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ विल सी द डिफरेंट एक्ट्स एंड पेनल्टीज अंडर डिफरेंट एक्ट्स। अभी ये थोड़ा सा अलग तरीके से ये हो रहा है, क्योंकि आइडियली कैसे पढ़ाना चाहिए आपको कि हर एक चैप्टर लेना चाहिए, उस चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है अंदर, उसके बाद में उसका डिटेल में इन बिटवीन, और उसके बाद में लास्ट में पेनल्टी होना चाहिए। एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आई एम टेकिंग इन अ डिफरेंट वे। सो डिफरेंट एक्ट एंड रिस्पेक्टिव पेनल्टीज, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू। एक बार आपके कान के ऊपर से गया तो हो सकता है आपको याद रहे, दैट्स व्हाई। So remember this different edition of Pharmacopoeia. There are ninth edition, recent ninth edition is there, 2022. First 55, second 66, after that 85, after that 96, 2007, 2010, 2014 and 18 and 22. तो कभी कभी कलर भी पूछ लेते हैं, तो कलर के लिए आप जस्ट गूगल करो कलर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया बुक, कुछ इसमें आएगा जो प्रीवियस ला, लाइट ग्रीन, डार्क सॉरी लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ऑरेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आ जाएगा आपको, रेड, ब्रिक रेड हो, डिफरेंट एक्ट्स एंड देयर पेनल्टीज इन रिलेशन टू आवर jurisprudence. So first one is nothing but the Pharmacy Act. Pharmacy Act was passed on the 4th of March 1948. Remember, Pharmacy Act was passed in the 4th of March 1948. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना गया है, क्योंकि जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द 1940। आपको ये थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पहले कैसे आ गया, फार्मेसी एक्ट बाद में कैसे आ गया। तो फार्मेसी एक्ट 1948, इट वाज इनेक्टेड ऑन द 4th मार्च 1948। ओके, नाउ इसके अंडर जितने भी पेनल्टीज है, इसके अंडर के जितने पेनल्टीज है, ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मतलब क्या, ऑफेंस मतलब गुनाह, कौन सा गुनाह किया मैंने, बहुत बड़ा गुनाह है। ऑफेंस मतलब क्या, गुनाह, ठीक है, ऑफेंस मतलब गुनाह। पेनल्टीज मतलब क्या, उसके लिए क्या, उसके लिए सजा, penalties, offenses and penalties. So first, under Drug and Cosmetic Act 19, under Pharmacy Act 1948. So under Pharmacy Act 1948, if anybody is claiming falsely, be a registered pharmacist. So falsely claiming registered pharmacist. So अगर कोई उसका एजुकेशन नहीं हुआ है और एजुकेशन न होने की बजाय वो बोल रहा है कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या फिर कोई किसी का एजुकेशन हो चुका है, आपने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर लिया, लेकिन आपका नाम नहीं है, so if you are not registered your name into the first register of State Pharmacy Council and you are claiming that I am a registered pharmacist, so at that time it is a punishable. So falsely claiming registered pharmacist, so it is a punishable, and it is punishable up to कोई तो फाइन ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, आपने अगर बोल दिया कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, अगर नहीं हो आप, so that is a conviction, वो गुनाह है। So on the first conviction you will be charged 500 rupees fine. So falsely claiming registered pharmacist, fine up to 500 on first conviction. एक बार गलती की है तो 500 rupees fine. On subsequent conviction, उसके बाद दोबारा गलती की, फाइन 1000 rupees, 6 month imprisonment. So अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो, भले ही आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका हो, जैसे मान लीजिए कि डिप्लोमा फार्मेसी हो गया आपका इस साल, तो अभी आपने काउंसिल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, you are not a registered pharmacist, though you have taken the training, though you have completed the syllabus, though you have completed the course, but still you are not a registered. So what is the registered pharmacist? When after completing the course, after satisfying the requirement for council, so if you have entered your name into a first register, that is a registration of pharmacist in the state pharmacy council, then only you become registered pharmacist. So before that you are not registered pharmacist. And if anybody is claiming falsely that I am a registered pharmacist, he is liable to punish. He will be liable to punishment. So what is the punishment? Fine up to 500 rupees on first conviction. एक बार गलती किया तो 500 rupees फाइन, अगर दोबारा गलती कर रहा है 1000 rupees फाइन एंड 6 month imprisonment. What is imprisonment? सजा, जेल, ओके, 6 month imprisonment सजा होगी, फाइन होगा 1000 rupees.
तो यहाँ पे याद रखो, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी वेरियस एग्जाम में आ चुका है। सो व्हाट इज द फाइन फॉर, सो ऑन फर्स्ट कन्विक्शन 500 रुपीज, ऑन सेकंड कन्विक्शन 1000 रुपीज, और फाइन ऑफ सॉरी फाइन और इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 मंथ। पहली बार किया तो 500 रुपये देंगे, छूट जाएगा, और दूसरी बार किया तो 1000 रुपये लगेगा उसको फाइन, या फिर उसको 6 महीने की सजा हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है। नाउ अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, अगेन सेकंड, dispensing by non-registered pharmacist, dispensing by non-registered pharmacist मतलब क्या है, मेडिकल पे आपकी पढ़ाई चल रहा है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो, और मेडिकल पे जाके आपने डिस्पेंसिंग चालू कर दिया, ड्रग इंस्पेक्टर आया, उसने चेक किया, आप तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो और आपने चेक किया, तो फाइन लगा देगा। तो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग बाय नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक्सेप्ट मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। तो क्या होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, तो उनको थोड़ा सा छूट दिया है कि दे कैन डिस्पेंस द ड्रग इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो मेडिकल प्रैक्टिशनर दे कैन हैव सम स्टॉक ऑफ ड्रग विद देम, ओके, फॉर इमरजेंसी पर्पस। सो डिस्पेंसिंग बाय नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक्सेप्ट medical practitioner, it is liable for punishment. Again, what is the punishment? So imprisonment of 6 months and fine up to 2000 rupees। और so अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो और फिर भी आप मेडिकल पे ड्रग्स दे रहे हो, क्या होगा आपका? दैट इज अ लाइबल फॉर पनिशमेंट, ओके। सो इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 2000, और बोथ, दैट इज द penalty. Now again, under drug and under pharmacy act 1948, third penalty, failure to surrender the registration certificate, failure to surrender the registration certificate। लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी आ गया रजिस्ट्रेशन का, और किसी कारण से किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी, किसी कारण से, या फिर आपके कोई रिकॉर्ड गलत निकला, सो इफ यू हैव सबमिटेड फॉल्स certificates, so after that when it came to notice, so pharmacy council of India will ask you, state council will ask you to surrender the registration certificate, और आपने उसको सरेंडर नहीं किया, सरेंडर मतलब वापस देना। सो इफ यू नॉट सरेंडर द registration certificate, so failure to surrender the registration certificate, it is liable for punishment, again fine up to 50 rupees, आपको 50 रुपए का फाइन लग जाएगा। अभी ये मजाक लग रहा होगा कि 50 रुपए कुछ भी नहीं होता, अभी ये बहुत बढ़ गया है, ये पुराने जमाने का है, क्योंकि अभी तो घिसी पिटी जिंदगी, वही घिसा पिटा सिलेबस है, वही आप पढ़ रहे हो, हमको भी वही पढ़ाना पड़ रहा है। Okay, so remember, failure to surrender the registration certificate, that is a fine up to 50 rupees। Then fourth penalty, okay, again इसके अंदर एक और एक conviction आता है। There are 4 conviction under the Pharmacy Act 1948। First, falsely claiming registered pharmacist; second, dispensing by non-registered pharmacist; third, failure to surrender the certificate। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। Now fourth one is the obstruction of state pharmacy council inspector, obstruction of state फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर आपके स्टेट के लिए फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है, फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर फॉर एनी रीजन, जैसे आपका कॉलेज का पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो उसमें जो इंस्पेक्टर आते हैं, उसको अगर ऑब्स्ट्रक्शन किया, मतलब उसको रोक दिया आपने कि नहीं कॉलेज में नहीं आना है, अंदर नहीं आना है, इसको इधर नहीं जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, that is the obstruction of state pharmacy council inspector, so that is also liable for punishment, and imprisonment up to 6 months and fine up to 2000, or both, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। सो फार्मेसी, दैट इज अ फार्मेसी एक्ट, ओके। देयर आर 4 पेनल्टीज अंडर फार्मेसी एक्ट, इसके ऊपर एक ही बार में क्लियर करो, 2-3 बार बोलता हूँ मैं। सो फर्स्ट, फॉल्सली क्लेमिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फाइन कितना है? 500 रुपये ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, और अगर दोबारा वही उसने वही गलती की तो 1000 रुपीज का फाइन, 6 मंथ का जेल। डिस्पेंसिंग बाय नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, what is the penalty? Imprisonment up to 6 month, imprisonment of 6 month and fine of 2000, 6 महीने की सजा हो सकती है एंड 2000 का फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। एक तो 6 महीने की सजा हो सकती है, या फिर 2000 का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। थर्ड, failure to surrender the registration certificate, so fine of 50 rupees। Obstruction of state pharmacy council inspectors, so imprisonment up to 6 months and fine of 2000, or both, okay। So this is the penalties under Pharmacy Act 1948, okay। We'll see the next
That is under ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द 1940, it was passed in the 1940 and rules under the DNC Act was passed in the 1940. So first penalty or first conviction if you are not following the provisions laid down by Drug and Cosmetic Act, the provisions laid down under the DNC Act, so that is a punishable. So what is the first conviction? So manufacturing, sale, distribution of manufacturing or selling or distribution of adulterated or misbranded or spurious or non-standard quality drug. अगर आप if you are involved in the manufacturing or selling or distributing of adulterated drug, misbranded drug or spurious drug or whatever drug you are supplying that is of non-standard quality, so that is likely to be punishable. That is punishable. So if you are engaged in the selling, manufacturing, distribution adulterated drug, misbranded drug, spurious drug, non-standard quality drug, which will likely to cause death or grievous hurt. मतलब क्या, अगर आपने कुछ ऐसा झोला छाप ड्रग बेचना, मतलब आपने 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 कुछ मिसब्रांडेड ड्रग बनाया या मिसब्रांडेड ड्रग सेल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक, मतलब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया और उससे अगर किसी का डेथ होता है और या फिर वो डेथ कर सकता है, तो लाइकली टू कॉज मतलब कर सकता है, लाइकली टू कॉज द डेथ और ग्रीवियस हर्ट, किसी को बहुत मतलब वो मिसब्रांडेड ड्रग के कारण किसी को बहुत ज्यादा ये हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो लाइकली टू कॉज द डेथ, वो मर भी सकता है या फिर ग्रीवियस हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। दैट इज अ पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 5 years। ठीक है, अगर आपने किसी ने मिस ब्रांडेड ड्रग बनाया, सेल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, अडल्ट्रेटेड ड्रग सेल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया और उसकी वजह से किसी का डेथ हो गया या फिर किसी को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया, मतलब किसी की आग चली गई, किसी कोई बहरा हो गया, मतलब ऐसा। सो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड, spurious, non-standard quality drug which are likely to cause grievous hurts, they are punishable with imprisonment up to not less than 5 years. Imprisonment not less than 5 years, which may extend up to lifetime imprisonment and fine not less than 10,000। तो ये ऐसा कुछ अगर आपने किया है या फिर आप उसमें है और आप पकड़े गए तो कितना, 5 साल, 5 साल से कम सजा नहीं होगी, मिनिमम 5 साल की सजा होगी और उससे ज्यादा सजा। अगर कोई मरी गया है तो वो उसके ऊपर आपका मर्डर का केस चलेगा और आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होगी, पूरी जिंदगी भर जेल में। तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग or drug having non-standard quality which are likely to cause a death or grievous hurt to the people are punishable with the imprisonment up to not less than 5 years and which may extend up to lifetime imprisonment and fine not less than 10,000। तो अगर ये हो गए एक कंडीशन हो गए, नाउ दूसरा कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन। So if you are engaged in the manufacturing, selling, distributing adulterated, misbranded, spurious drug, non-technical quality, non-standard quality drug, now which are not likely to cause the death or grievous hurt, मतलब ऐसे ड्रग लेने की वजह से अगर कोई मर नहीं सकता लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, कोई मरेगा नहीं लेकिन नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है, उसको कोई डैमेज नहीं होगा ज्यादा, लेकिन वो ड्रग क्या है, मिसब्रांडेड है, अडल्टरेटेड, सो दैट इज अगेन इज अ पनिशेबल with imprisonment not less than 1 year, not less than 1 year, which may extend up to 3 years and fine up to not less than 5,000 rupees on first conviction। पहली बार अगर है 5,000 का 5,000 का फाइन लगेगा, एक ईयर, 1 साल या 3 साल तक की सजा हो सकती है आपको ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर दूसरी बार भी आपने वही किया, सो इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 2 years which may extend up to 6 years and fine not less than 10,000। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ adulterated, misbranded, spurious drug or non-standard quality drug which is likely to cause death or grievous hurt। grievous मतलब बहुत ज्यादा डैमेज। what is the punishment? So it is punishable with imprisonment up to 5 years and which may extend up to lifetime imprisonment and fine not less than 10,000। same drug which are not likely to cause grievous hurt is also punishable। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ होगा नहीं लेकिन आपने मिस ब्रांडेड ड्रग दिया तो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल, वो मरा नहीं या फिर उसको
ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, उसका आँख नहीं खराब हो गई, इसका किडनी खराब नहीं हुआ, फिर भी लेकिन वो पनिशेबल है. So like above but not likely to cause death or grievous hurt is also punishable with the imprisonment not less than 1 year, which may extend up to 3 years, and fine not less than 5,000 on first conviction. On second conviction or subsequent conviction, so imprisonment up to not less than 2 years, which may extend up to 6 years, and fine not less than, उसमें तीसरा गुना क्या है? So third conviction, if anybody. So penalty for non-disclosure of the name of manufacturer. मान लीजिए कि आपका मेडिकल का शॉप है और आपने वहां से कोई दवा बेची, तो वो दवा खा के किसी कोई आदमी मर गया, किसी को रिएक्शन हो गया. In that case, so investigation will be there. So if you are not disclosing the name of manufacturer, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे आप. तो पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर. व्हाट इज पेनल्टी? इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, ओके, और फाइन अप टू 10,000 और बोथ. तो यहाँ पे आपको 1 साल की सजा हो सकती है, 10,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, सजा भी और फाइन भी. So penalty for non-disclosure of name of manufacturer. Third, penalty for not keeping the document or okay, not or not disclosing the information. So penalty for not keeping the proper documents or not disclosing the information. कि आपने परचेस कहाँ से किया था वो ड्रग, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए. ठीक है, अगर आपको शॉप है, मेडिकल शॉप, इफ यू आर सेलिंग ड्रग्स, then you should keep the purchase record, you should keep the selling record. Okay, okay. So not keeping the documents or not disclosing the information of that drug, so is again liable for punishment, imprisonment up to 1 year or fine of 10,000 or both under Drug and Cosmetic Act 1940. पेनल्टी फॉर एडवर्टाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट. तो आप अगर आपने कुछ ड्रग मैन्युफैक्चर किया है, तो इफ यू मैन्युफैक्चर सम ड्रग एंड फॉर अप्रूवल यू हैव टू एनालाइज दैट ड्रग बाय फ्रॉम गवर्नमेंट एनालिस्ट आल्सो. आपका कंपनी है, आपने एनालिस्ट किया, सब कुछ ओके, आपने मार्केट कर दिया, ऐसा नहीं चलता. वही सैंपल आपको एफडीए को देना पड़ता है. हमने ये बनाया है और अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाया है, according to US FDA guidelines, according to CDSCO guidelines, we have manufactured some product, okay, some medicinal product. Please, I'm submitting hereby the samples. उसको samples भी देना पड़ता है. So government analyst will analyze that drug and will send the results. So if you are utilizing that result for publicity, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गोली बनाई, मैंने एक दवा बनाया, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टैबलेट बनाई और मैंने बोला ये टैबलेट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये होता है वो होता है, आजकल होता है ना मुस्ली पावर, ये वो. मैंने एक दवा बनाया, गवर्नमेंट एनालिस्ट ने उसका एनालिस किया, सब कुछ सही है. अगर मैंने वो सर्टिफिकेट एज ए एडवर्टाइजमेंट यूज किया, मैंने जो दवा बनी उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल है, एनालिस्ट ने भी चेक किया तो करेक्ट है, ऐसा अगर. सो पेनल्टी फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, फाइन अप टू 500 रुपीज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन एंड ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन imprisonment up to 10 years और फाइन और बोथ. तो ऐसा किया तो पहली बार में आपका फाइन लगेगा 500 रुपीज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, और बार बार ऐसा कर रहे तो 10 इयर्स का आपको इम्प्रिजमेंट, सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी 10 साल की, और फाइन भी लगेगा बोथ. नाउ थर्ड, पेनल्टी फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक. इसके रिलेटेड में कोई भी एक्ट का जो रूल है उसका अगर तोड़ दिया आपने, so any contravention of the provisions of the act for manufacturing, distribution and distribution of cosmetic, so it is also liable for punishment. What is the punishment? Imprisonment up to 3 years for manufacturer, imprisonment up to 1 year for distributor. अगर मैन्युफैक्चरर ने रूल तोड़ा है तो उसको 3 साल की सजा होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने रूल तोड़ा तो उसको 1 साल की. पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा मेडिसिन इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ दिस एक्ट. अगर आपको आयुर्वेदिक ड्रग बना रहे हैं, इन्होंने ड्रग बना रहे, सिद्धा ड्रग बना रहे, और वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ डीएनसी एक्ट नहीं है. सो इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एनी आयुर्वेदिक और सिद्धा और इन्होंने मेडिसिन which is not accordance with the provisions laid down under the Drug and Cosmetic Act, then it is again liable for punishment. So any contravention of act under section 33 EEC is liable for punishment, and there is nothing but the imprisonment up to 1 year, imprisonment of 1 year and fine of
fine not less than 2000 rupees. Contravention of section 33 EEA. Any provisions, contravention of any provision related to this. Again liable for punishment up to imprisonment of 3 years and fine not less than 5000. So that is the penalties related to drug and custody. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जैसे ये बोला था मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ misbranded drug which will cause grievous hurt or death is liable for punishment of no imprisonment not less than 5 years, which can extend up to life imprisonment and a fine not less than 10,000. Above, but above same like that is manufacturing, selling, distribution of adulterated, misbranded or spurious drug or low quality drug, but which will not cause grievous hurt to patient, which will not cause grievous hurt or death, is also again punishable. Okay, not less than 1 year imprisonment may extend up to 3 years and fine 5,000 on first conviction, and on subsequent conviction imprisonment not less than 2 years and fine up to 10,000. ये penalties बहुत ही ज़्यादा important. Now penalties under Narcotic Drug and Psychotropic Act. So this Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, that is known as NDPS Act. Recently अभी अभी जो अब्राहम है शाहरुख खान का बेटा, तो रिसेंटली शाहरुख खान का बेटा इसमें इस चक्कर में पड़ा था और इसके अंदर उसको जेल भी जाना पड़ा. तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट बहुत ही डेंजर होता है इंडिकेशन. इसमें अगर किसी किसी का भी नाम आ गया, किसी का भी कन्विक्शन हो गया तो उसकी लाइफ बर्बाद होती है. ठीक. सो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक it was passed in the 1985. उसका year of passing भी याद रखो. Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act was passed in the 1985. Now offenses क्या है इसके अंदर कि कौन से गुनाह हो सकते हैं इसके अंदर और वो गुनाह के लिए सजा क्या है. So first offense contravention in relation to poppy straw, contravention related to poppy straw, opium poppy or opium or prepared opium or coca plant and leaves, manufactured drugs, preparation substances, cannabis and ganja. So any contravention or any breaking of these rules related to poppy straw, opium poppy, opium, prepared opium, coca plant, leaves, manufactured drug and preparation substances, cannabis, ganja. इसके डेफिनेशन अपन बाद में देख लेंगे इसके अंदर क्या क्या है. Remember any contravention of this in relation to poppy straw, opium poppy, opium, prepared opium, coca plant leaves, manufacturer drug preparation, then substances, cannabis, ganja, or import, export, transshipment, external dealing of same. इसका import अगर किया, इसका illegal import किया या फिर ट्रांसशिपमेंट किया, मतलब आपने किसी को मालूम भी नहीं कि क्या दिया है. किसी ने बोला कि नहीं मुझे एक ट्रक चाहिए 2 दिन भाड़े के लिए. ट्रक के अंदर क्या भरा है किसी को कुछ मालूम नहीं. ट्रक के अंदर गांजा भरा है उसको मालूम ही नहीं, लेकिन वो पुलिस ने पकड़ लिया. तो वो भले ही आपको मालूम नहीं लेकिन आपको सजा होगी. तो कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी और ओपियम, prepared opium, coca plant, leaves, manufactured drug and preparation substance, cannabis, ganja, etc. Again, import of same, export of same, transshipment of same, external dealing of the drugs and allowing the premises for commencing the offense. मतलब आपको मालूम नहीं कि आया कोई आपके घर में, आपको बोला आपको एक रूम चाहिए रेंट से, आपने फटाक से दे दिया, चलो आपको रेंट मिलेगा उसका 4000 5000 आप दिया. उसने अगर कोई ऐसा गांजा वगैरह डीलिंग किया, उसका ड्रग डीलर है, अगर आपके प्लेस पकड़ आपके घर पे पकड़ा गया वो पुलिस ने फिर नार्कोटिक इंस्पेक्टर्स होते उन्होंने अगर पकड़ लिया तो आपको भी सजा होगी. आप तो बोलोगे सर मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मुझे तो रेंट के लिए मैंने रेंट के चक्कर में मैंने रेंट को घर दे दिया, लेकिन मालूम हो या नहीं हो आपको भी सजा होगी. तो import, export, transshipment of the same means above poppy straw, opium and all that, and dealing of drugs, allowing your premises मतलब आपका खुद का जगह, allowing the premises for commencing the offense. गुनाह करने के लिए आपने आपकी जगह का यूज करने दिया उसको, फिर भी आप पनिशेबल है. व्हाट इज द पेनल्टी? रिगरस इम्प्रिजमेंट. रिगरस मतलब क्या? कड़ी से कड़ी सजा. आप देखो जज साहब इसको कड़ी से कड़ी सजा दो. कड़ी से कड़ी सजा मतलब क्या है? रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 to 20 years, फाइन अप टू 1 to 2 lakhs on first conviction, and imprisonment up to 15 to 30 years and a fine up to 1 to 3 lakhs, 1.5 to 3 lakhs on subsequent conviction. This was question in GPAT 2019.
So any offense, anything contravention, any breaking of rule in relation to poppy straw, opium poppy, then prepared opium, coca plant, leaves, manufacturing drug and preparation, manufacture drug or preparations, substances, cannabis, ganja, import, export, transshipment, and some external dealing of the drugs, and allowing the premises for commencing the offense, they are punishable up to rigorous imprisonment. Rigorous मतलब क्या, कड़ी सी कड़ी सजा, कड़ी सी कड़ी सजा देंगे, कड़ी से कड़ी सजा. Rigorous imprisonment up to 10 to 20 years and fine up to fine of 1 or 2 lakhs on first conviction. पहली बार पकड़ा गया 10 या 20 साल की सजा, 10 से लेके 20 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी लगेगा उसको 1 या 2 लाख. तो अगर अंदर गया तो डायरेक्ट 20 साल बाद बाहर. अगेन ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, दूसरी बार भी कर दिया उसने ऐसा कुछ कांड, तो फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 15 to 30 years and fine up to 1.5 to 3 lakhs. This was in GPAT 2019. मोस्ट ऑफ द नार्कोटिक ड्रग के अंदर जो पेनल्टीज है तो उसका पेनल्टीज उतना ही है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 to 2 lakhs फाइन, रिगरस इम्प्रिजमेंट. ये याद रखो आप. सो अगेन सेकंड ऑफेंस, a person who contravenes any provisions of the act in respect to ganja for cultivation, ganja or cultivation of cannabis plant. तो जो भी नार्कोटिक ड्रग है उसका कल्टीवेशन के, whatever narcotic drugs are there, cultivation of opium, ganja, they are strictly monitored and it is under the control of state government under the NDPS Act. So we'll see in the detail in upcoming lectures. So any controversies or any breaking of rule related to cultivation of ganja and cannabis plant, so again it is liable for punishment. So what is punishment? Rigorous imprisonment of 5 years. Penalty is nothing but the rigorous imprisonment of 5 years and fine up to 1.5 lakh on first conviction. On second conviction, imprisonment of 3 years and fine of 1 lakh. तो मतलब अगर पहली बार में अगर उसने बिना बताए गवर्नमेंट को अपने खेत में गांजा का प्रोडक्शन चालू किया, गांजा दिया खेत में ही, अगर गया तो क्या होगा, 5 साल की सजा और 1.5 लाख का फाइन अगर बार है तो. अगर दूसरी बार है तो 3 फिर से सजा, 1 साल का, 3 साल की फिर से सजा हो गई, 1 लाख का उसको फाइन होगा. देन अगेन illegal consumption, possession of narcotic drug or psychotropic substances is liable for punishment. There is the rigorous imprisonment up to 1 year and fine or both. अभी जो सुपुत्र है इसका, शाहरुख खान का सुपुत्र जो है इस कन्विक्शन में पकड़ा गया था, ये जो कन्विक्शन है लास्ट वाला, इसके अंदर उसको सजा हुई थी. तो इलीगल कंजम्पशन मतलब आपके पास में कंजम्पशन, खाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए भाई, आजकल खाने के लिए भी लाइसेंस लगता है. अगर आपको नशा करना है, गांजा का नशा करना है तो उसको उसके लिए भी लाइसेंस लगता है. तो इलीगल कंजम्पशन, इलीगल पोजीशन मतलब साथ में रखना, ठीक है, आपने खाया नहीं है, आपके सिर्फ बैग में लेके घूम रहे हो बेचने के लिए, तो इलीगल पोजीशन, वो आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप लेके घूम रहे हो. तो इलीगल कंजम्पशन, इलीगल पोजीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इज लायबल फॉर पनिशमेंट, रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year एंड फाइन और बोथ. तो ये जो अब्राहम खान जो है उसके अंदर ही गए थे. तो ही वाज मतलब उसके पास मिला नहीं कुछ, लेकिन उसको एक शक के बेसिस पे उसको वहां पे उठाया था बाय एनडीपीएस. द नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ईयर याद रखो. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट was passed in 1971. Under this act, any person who is not registered medical practitioner, any person who is not registered medical practitioner and engaged in the termination of pregnancies, अगर आप डॉक्टर नहीं हो और फिर भी आप क्या कर रहे हो, इलीगल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो, मतलब आप एबॉर्शन कर रहे हो, इलीगल एबॉर्शन. तो एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर and are engaged in the termination of pregnancy should be punishable with imprisonment or fine or both. उसको क्या हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं. तो they have not mentioned a particular fine or particular imprisonment, but they have just only mentioned so imprisonment or fine. तो अगर कोई भी non registered medical practitioner is engaged in the termination of pregnancy, he is liable to punish with imprisonment and fine or both. Then any contravention of the provisions will be punishable with imprisonment or fine up to 1000 or both. मतलब आपके घर में
कोई झोला छाप डॉक्टर आके बैठा है और एबॉर्शन कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो आपको भी पकड़ लेंगे। नाउ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, इसके अंदर जितने भी पेनल्टीज है वो क्या है? फर्स्ट में नथिंग बट द एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, like failure to pay excise duty, failure to supply the information, failure to attempt or to commit any one of the above offense। अगर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर जितने भी रूल्स दिए उसको ब्रेक किया, तो एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फेलियर टू पे द एक्साइज ड्यूटी, अगर आपने इथेनॉल ले लिया, 2-3 ड्रम इथेनॉल है आपके पास और आपने उसका ड्यूटी नहीं भरा, मतलब टैक्स ही नहीं भरा, दैट इज अ, इफ यू आर नॉट फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया, मतलब क्या कि आपने, आपको परमिट है 2 ड्रम अल्कोहल का, आपने लिया 4 ड्रम अल्कोहल और 2 का ही टैक्स भरा, 2 का नहीं भरा, तो अगेन दैट इज सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द अबव, मतलब आपने कुछ किया नहीं है लेकिन करने वाले हो, किया नहीं है कुछ लेकिन करने वाले हो, उसको भी सजा है, मतलब गुनाह किया नहीं है आपने लेकिन करने वाले हो। अटेम्प्ट टू कमिट, ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट एनी वन ऑफ द ऑफेंस शैल बी पनिशेबल with imprisonment up to 6 months and fine up to 2000 or both। So under medicinal and toilet preparation act, if any contravention of the act is liable to punishment up to 6 months and fine up to 2000। याद रखो इसको, ये इसके भी बारे में क्वेश्चन, ये याद रखो। एनी contravention of the provisions of the act like failure to pay excise duty, supply information, attempt to commit any one of the offense shall be punishable with imprisonment of 6 months और फाइन अप टू 2000 और बोथ। 6 महीने की सजा भी हो सकती है, 6 महीने तक सजा हो सकती है, या फिर आपको फाइन लग सकता है 2000 का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफेंस रिलेटेड टू वेयर हाउस। ऑफेंस रिलेटेड टू वेयर हाउस, तो वेयर हाउस के बारे में अगर कोई प्रोविजन है, so if any rule is there, so whatever provisions are there under medicinal and toilet preparation act regarding the warehouse, जहाँ पे आप ये अल्कोहल का स्टोरेज करते हो, जहाँ पे कोई नार्कोटिक ड्रग का स्टोर होता है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन होता है, उसके लिए प्रॉपर रूल होता है। सो एनी प्रोविजन, इफ यू आर ब्रेकिंग एनी रूल, इफ यू आर कॉन्ट्रावेंटिंग एनी प्रोविजंस related to warehouse, then you are liable to fine up to 2000, okay, fine up to 2000। मेंटेनेंस, ओके, नोट मेंटेनेंस ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड अगर गलत रखा आपने तो उसका भी फाइन है, फाइन अप टू 2000 अगेन, so remember over here, so offense related to warehouse, that is a fine up to 2000, maintaining false record account in the warehouse, again liable for 2000। now sale of dutiable goods except in the prescribed manner, sale of dutiable good except in the prescribed container, keeping the stocks of dutiable good in a disorderly manner। अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन है या फिर आपका कोई नार्कोटिक ड्रग का प्रिपरेशन है, उसका आपने सेल किया, सेल ऑफ ड्यूटीएबल गुड एक्सेप्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो जो भी प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है उसके अंदर ही आपको सेल करना है, उसके वो रूल छोड़ के आपने सेल किया, या फिर आपने स्टॉक्स भी है, मतलब स्टॉक जो आता है ना, ड्यूटीएबल स्टॉक, ड्यूटीएबल गुड्स का, उसको भी अगर डिसऑर्डरली मैनर में रख दिया फिर भी फाइन लगेगा। सेल ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स एक्सेप्ट इन अ प्रेस्क्राइब्ड कंटेनर, keeping the stock of dutiable goods in a disorderly manner, you are liable for punishment up to fine up to 1000 rupees। Then again obstruction of any excise officer, obstruction of any excise officer while carrying out their duties are liable for punishment up to 6। मतलब कोई अगर एक्साइज इंस्पेक्टर आ गया चेक करने के लिए और उसको आपने रोक दिया बीच में ही, नहीं मैं देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा, तो बोलता है तू क्या देखेगा मेरे को, चल, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर व्हाइल कैरिंग देयर ड्यूटीज, फाइन अप टू 600। पेनल्टीज अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, पेनल्टीज अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, so drug and magic remedies act was passed in 1954। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अंदर डेफिनेशंस क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, so it was passed in the 1954, so it is also known as the objectionable advertisement act, objectionable advertisement act।
Drug and Magic Remedies Act 1954. So any person who contravenes any provisions of this act are liable to punish. Okay? On the first conviction, so imprisonment of 6 months or fine or both. On second conviction, imprisonment of 1 year or fine or both. Then next is the Drug Price Control Order DPCO 1995. Drug Price Control Order DPCO Act 1995. So any contravention of this act again is liable for punishment in accordance with the provisions of Essential Commodity Act 1951. इसके रेटिंग क्वेश्चन आता है कि DPCO any contravention of Drug Price Control Order Act is liable for punishment under one of the following act. तो उसमें दो चार एक्ट के नाम ऑल डाल देंगे. So remember DPCO Act was a it was a Drug Price Control Act was a extension of your essential commodity act 1955. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसका एक्सटेंशन करके उसमें से ड्रग अलग किया फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लाया. So that's why any contravention or any breaking of rule under DPCO is liable for punishment under the Essential Commodity Act 1955. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. Then next one is nothing but the Prevention of Food Adulteration Act. आप जो खाना खा रहे हो उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. Prevention of Food Adulteration 1954 and rules under 19. All offences under this provision, under the provision of the act, so all offences are liable for punishment with imprisonment up to 6 months. इसमें अगर कोई ब्रेक किया रूल प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इसके अंदर जो भी रूल्स है उसको अगर ब्रेक किया तो कितना फाइन लगेगा, कितना सजा होगी. imprisonment for 6 months which may extend up to 3 years and fine of 1,000 rupees. So those are the punishment under this act. So punishment under Indian Patent Act 1970. Indian Patent Act 1970 यहाँ पे पास होता पेटेंट एक्ट 1970 में contraventions of secrecy of invention, then falsification of entries in the register. तो मतलब यहाँ पे देखो क्या गुनाह किया आपने अगर गुनाह किया ये contravention of secrecy of invention, किसी ने कोई इन्वेंट किया है जैसे मैंने कुछ मान लीजिए कि मैंने कुछ नया आविष्कार किया और वो आविष्कार सीक्रेट है अभी तो उसका पेटेंट नहीं हुआ है तो मेरे को मालूम है और मेरे साथ काम करने वाले को ही मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं. अगर इसमें ही 3-4 जनों में से एक का दिमाग घूम गया तो उसने क्या किया, चलो इसका और मेरा थोड़ा सा क्रॉस है तो मैं क्या करता हूँ इसका जो काम चल रहा है उसका सब पब्लिक कर देता हूँ. कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन में क्या है सीक्रेसी मेंटेन होना चाहिए. अगर वो सीक्रेसी का कॉन्ट्रावेंशन किया और फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर तो जो मेंटेनेंस रजिस्टर है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें फॉल्स एंट्रीज किया दैट इज लायबल फॉर punishment imprisonment up to 2 years or fine or both under Indian Patent Act. अगर मेरा पेटेंट है रजिस्टर किया है और उसका काम चल रहा है दूसरा कुछ फॉर्मुलेशन वगैरह चल रहा है और बीच में ही किसी ने वो लीक कर दिया, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा पेटेंट है वो कंपनी का और उसमें मैं काम कर रहा हूँ और मैंने क्या किया कि दूसरी कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई की कि यार ये ऐसा ऐसा है, सेम ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा ऐसा प्रोसेस है, आप बना डालो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो. तो ये इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years हो जाएगा, उसको 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं. कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन, falsification of entries in the register, they are punishable up to that is imprisonment up to 2 years or fine or both. Then unauthorized claim of patent, unauthorized claim of patent मतलब आपने कुछ रिसर्च किया, कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका पेटेंट लिया, आपका पेटेंट हो गया वो, ठीक है, आपके नाम पे. अगर मैंने उसको बोला कि नहीं ये मेरा पेटेंट है, दैट इज अनऑथराइज्ड क्लेम. अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट दैट इज लायबल फॉर पनिशमेंट अप टू 1 लाख, 1 लाख का उसको फाइन लग जाएगा. रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस, रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस होता है ना, आजकल कोई भी अपने आप को पेटेंटिंग एजेंट बोलता है कि आप मुझे पैसे दे दो मैं आपको पेटेंट पब्लिश करके दूँ. सो रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस, अगर मेरा कुछ नहीं है पेटेंट का काम नहीं, मेरा अपना चल रहा है क्लासेस का और मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि पेटेंट ऑफिस, ऐसा बोर्ड लगा दिया, दैट इज अ wrongful use of word patent office, that is punishable. So imprisonment of 6 months और फाइन और बोथ. तो 6 साल की सजा हो, सॉरी 6 महीने की सजा हो सकती है
फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस बाय अनरजिस्टर्ड एजेंट, मतलब होता है ना कि कोई बोलता है कि नहीं मैं आपको पेटेंट करवा के दे दूंगा, वो पेटेंटिंग एजेंट है या नहीं उसका आपको मालूम होना ही चाहिए। सो इफ ही इज नॉट अ पेटेंटिंग एजेंट, he is not a registered patenting agent. So practice by unregistered agent. Fine of 1 lakh on first conviction and fine of 5 lakh on second conviction. Again, the Poison Act 1919, इसके अंडर कितना पेनल्टीज है? So illegal possession or sale or import of poison, that is punishable. तो आपने अगर कोई गए आप बैंकॉक घूमने और वहां पे लेके लेके आए आप क्या स्कॉर्पियन का वेनम इलीगली चुरा के जेब में से लेके आए और आप पकड़े गए तो आपको फाइन हो जाए। तो इलीगल पोजीशन, पोजीशन मतलब साथ में रखना, ओके। सेल इंपोर्ट ऑफ पॉइजन, illegal possession, sale, import of poison is punishable with the imprisonment up to 3 months or fine up to 500 or both on first conviction। ठीक है, तो क्या होगा, 3 महीने की तक जेल, 3 महीने तक जेल आपको हो सकती है, जेल हो सकती है, आपको 500 रुपये फाइन लगेगा या फिर दोनों भी हो सकता है। ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहली पहली बार गलती की तो, दूसरी बार गलती की ऑन सेकंड कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 1000, उसको डबल कर दो। तो पॉइजन रखना भी इलीगल है, पॉइजन देना तो इलीगल है ही, लेकिन रखना भी इलीगल है, सेल करना इंपोर्ट करना इलीगल है। देन नेक्स्ट इज नथिंग बट द प्रिवेंशन ऑफ cruelty to animals, prevention of cruelty to animals, prevention of cruelty to animals एक्ट 1960। तो इसके अंदर एनिमल का क्रुएलिटी प्रिवेंट करने के लिए एक्ट आया। तो होता है ना, आपने वीडियोस देखा होगा, कुत्ते को कुत्ते को पूछ, कुत्ते को देखो पूछ पे पकड़ते और घुमाते, दैट इज वन ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ एनिमल क्रुएलिटी। कुत्ते को बहुत मारते हैं, जैसे जानवर होगा कोई उसको मारते हैं, गाय होती है, बैल होता है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ रूल आपके लिए, गाय और भैंस, गाय बैल जानवर कुत्ता बिल्ली उनका कोई है नहीं, उनका भी है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1916। अगर उसको मारेंगे, कुत्ते को मारेंगे, कुत्ते को पूंछ को पकड़ के घुमाएंगे तो आपको जेल हो सकती है। वो वीडियो में भी उसमें व्यूज आएंगे, उसमें उसमें आपको पैसा भी आएगा। लेकिन अगर कंप्लेंट किया किसी ने, वैसे तो पुलिस वाले भी देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं, अगर किसी ने कंप्लेंट की तो फिर आपका खेल खत्म। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। सो ट्रीटिंग एनिमल्स क्रुएली फर्स्ट टाइम। सो व्हाट इज द फाइन? फाइन ऑफ 10 रुपीज। मजाक लग रहा है, 10 रुपए दे के कोई भी छूट जाएगा ना। सो ट्रीटिंग एनिमल क्रुएली ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, फाइन ऑफ 10 रुपीज and may extend up to 50 rupees, and on subsequent conviction fine of 25 to 100 rupees। पहली बार गलती की तो 10 रुपए का फाइन लगेगा, 10 से लेके 50 रुपए तक फाइन लगेगा। दूसरी बार गलती की तो 100 रुपए का फाइन लगेगा। तो 100 रुपए में तो कोई भी छूट जाएगा। पुराना फाइन है, अभी आजकल डायरेक्टली 5000 रुपीज लेते हैं, एक तो पहले ही वो कमी नहीं होते। परफॉर्मिंग द ऑपरेशन लाइक फुका, कुछ भी जैसे गांव में होता है की नाही आमची गाय दूध देत नाही, मग काय करा, पूजा करा किंवा काही तिला बांधा गळ्यात किंवा एखाद्या त्याच्यावर बळी द्या। सो परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक फुका, करनी और एनीथिंग एनी ऑर्डर टू increase the milk of your animal, so it is also punishable। so what is the fine? 1000 rupees और imprisonment up to 2 years। कोई अगर बोल रहा है कि मैं आपकी गाय का दूध बढ़ा के दूंगा, ठीक है, ये करके, तो उसको जेल हो सकती है 2 साल। दिस वाज द पेनल्टीज रिगार्डिंग